Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys. So this is an announcement video for all of you who have been reaching out to me for your personal guidance. I will provide a link to my email ID in the description box. Please send me an email and then I will send you the link of my calendar so that you can book a call for a clarity call. Okay, so as per your convenience, there are time slots available. Whatever time suits you, please block the calendar so that we can meet and discuss what is the issue. This is going to be a quick 15-20 minutes warm-up call where we get to know each other and we, I even understand your pain point, what is the concern, and what is the best way to go forward with it. Okay, so thank you so much for reaching out to me for my personal guidance. Thank you for showing interest in my personal guidance. Thank you for trusting me with your personal guidance, guys. Okay, the window for the month of July is open. You can book your timings. In April, I will not be doing personal guidance for the first half of August. Sorry, not April, August. In the first half of August, like from 2nd or 3rd August till 15th of August, I will be not doing any personal guidance, and because I will be busy with something else which is pre-planned already. So the windows are open for July. So if you are interested, if you are keen, then please go ahead and send me a mail. The link for my email is in the description box. All right, so looking forward to that. All of you who had been reaching out to me for your personal guidance. And now let's get started with some guidance that you are waiting for. क्या guidance करना है हमें आज? All right, I will okay guys, for other people, if you are asking me questions, first of all you will have to wait for your, once you put in the question, एक बार question आप डाल देते हैं तो थोड़ा आपको patiently wait करना पड़ेगा. I cannot do the readings at the drop of the hat because the things are planned, things are scheduled and I have to take care of everything, as you can understand. जैसे कि आपको भी हर चीज प्लान करनी पड़ती है ना, तो मुझे भी करनी पड़ती है. तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन को क्लियरली लिखिए. एक क्वेश्चन आया है कि शाहिर शेख एंड रिया शर्मा पे वीडियोस बनाइए, तो मैं उस पर क्या वीडियोस बनाऊंगी, राइट? बिकॉज आई एम नॉट देयर फैन, और कि मैं उन पे शायरी लिखती जाऊं या पोएम्स लिखती जाऊं. तो आपको जो भी जानना है टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछिए और वहां पे रहने दीजिए. If I feel drawn, first of all, first criteria for me doing the guidance is that I should feel drawn to do that guidance. Okay guys, जब अंदर में कोई spiritual inspiration ही नहीं है तो मैं उसको क्या करके क्या फायदा है उसका. तो first of all spiritual inspiration, and then as per the availability of my time I will do the guidance. And of course when I put a lot of my time and energy into doing these readings guys. Okay, and अगर उस वीडियो का 1 मिनट भी व्यू नहीं हुआ, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बनाया था शक्ति का एंड शक्ति एंड राघव का एंड व्हाट एल्स, हु एल्स, दिस रिया शर्मा, अगर उसका 1 मिनट भी व्यू नहीं है तो फिर आई विल नॉट मेक दीज वीडियोज. ओके, क्योंकि I understand that there are not a lot of views on my videos, but जितने भी views even फहमान और सुम्बुल के पहले भी होते थे तो उनका व्यूज हमेशा 5, 7, 8 मिनट ही रहता था. तो इवन दो देयर वर फ्यू व्यूज, 100 व्यू, 50 व्यू, 150 व्यू, बट आई लव्ड द फैक्ट कि इवन ये जो 100-50 लोग वीडियोस देख रहे हैं ना अपना, दे रियली आर इन्वेस्टेड इन द रीडिंग्स. क्योंकि मैं भी कोई चलता फिरता रीडिंग नहीं करती हूँ. आई डू अ डीप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रीडिंग्स, और मुझे वैसे ही कद्रदान लोग चाहिए जो कि अपना भी टाइम लगा के चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग्स बहुत ही प्यार से करती हूँ, जैसा कि आप जान सकते हैं, जैसा कि आप खुद अपना वाइब्स फील कर सकते हो. तो यहाँ पे बहुत कमर्शियलिज्म नहीं चल रहा है. आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी रेस, जल्दी जल्दी कुछ करते रहो, वीडियोस बनते जाए. आई हैव नेवर मेड मोर देन 1 वीडियोज इन माई लाइफ एवर ऑन एवरी डे. जस्ट 1 वीडियो ही मैं बनाती हूँ एवरी डे, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए बनाना. तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपने रीडिंग्स को बहुत प्यार से बनाती हूँ. तो अगर उसको कोई 1 मिनट भी नहीं दे रहा है ना, तो फिर मैं वो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं लूंगी. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट. ओके,
एंड व्हाट एल्स, यस प्लीज बी क्लियर विथ योर क्वेश्चंस कि अगर शाहिद शेख या जो भी नाम है या फिर कोई भी और पर्सनैलिटी है उनके बारे में आपको कुछ जाना है तो टू द पॉइंट क्वेश्चन करिए. यू कैन ऑलवेज आस्क मोर क्वेश्चन अबाउट देम लेटर, लेकिन एक कमेंट डाल रहे हो तो एक एस्पेक्ट पे या फिर दो एस्पेक्ट पे अगर आप ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे तो मुझे वो क्वेश्चन लेने में आसानी होगा, राइट? तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा. पर्सनल गाइडेंस जिनको भी चाहिए, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आप मुझे मेल भेजिए एंड आई विल टच बेस विथ यू. Okay, with having said all these things, now what we can do is, okay, let me explain couple of things and then we can make this video a total announcement video. तो किस चीज पे बात हो रही थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग कि सुम्बुल ने अपना म्यूजिक वीडियो का पोस्टर लॉन्च किया है एंड विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी गॉट फ्रॉम दिस कार्ड. इफ यू रिमेंबर फॉर दिस वीक्स गाइडेंस, आई थिंक कार्ड्स भी अभी हैं ही यहाँ पे. So yes, this was the card that we got for Sumbul this week, and there she was making the releasing the poster of her music video. Spot on reading once again. तो yeah, तो question आया है कि there was a lot of confusion related with Fahman. है ना? कुछ लोग बोल रहे हैं कि फहमान इतना भी फहमान इतना भी इनोसेंट नहीं है कि उसको पता नहीं चल रहा होगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस गाइज. ओके, फर्स्ट एस्पेक्ट ये होता है कि मुझे रीडिंग में क्या पता चला है. रीडिंग में क्या पता चला है उसको मैं बिल्कुल बाउंड्रीज में रखती हूँ. जो रीडिंग में पता चला है वो रीडिंग में पता चला है, उसको मैं ट्वीक नहीं कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इन फहमान का जो स्नेकी वुमेन के साथ, जो भी फहमान का नहीं बोल सकते हैं बट स्नेकी वुमेन को जब हमने फाइंड किया तो हमें क्लियरली पता चला कि शी इज हैविंग फीलिंग्स फॉर हिम बट शी इज कीपिंग हर कार्ड्स क्लोज टू हर हार्ट. ओके, शी इज कीपिंग हर कार्ड्स क्लोज टू हर हार्ट, यानी कि वो फहमान को नहीं बता रही है. ये हमें रीडिंग से पता चला है. ओके, अब फहमान को ये बात पता है नहीं पता है ये हमें रीडिंग से नहीं पता चला है. ओके, हम अपना अंडरस्टैंडिंग, दुनियादारी की अंडरस्टैंडिंग से हम समझ सकते हैं कि कोई भी बंदा इतना तो नासमझ नहीं होता है कि उसको पता ना चले. ओके, बट आई कैन नॉट टेल दिस थिंग इन द रीडिंग बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द रीडिंग, नीदर it is something that I picked up from the cards. So while it makes sense, it makes common sense कि यार इतना बड़ा बंदा है, फिल्मों में काम करता है, लोगों से मिलता है जुलता है, क्या उसको फीलिंग्स नहीं पता चलेगी किसकी? ये हमें we can connect two dots and understand this, but reading से हमें यही पता चला है कि this girl is not revealing her cards. And somebody asked कि how can you say that this is a one-sided affair? देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना कि इतना ज्यादा पोस्टमार्टम मत किया करो और इतना हर चीज का क्वेश्चन आंसर्स मत किया करो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज, यू आर नॉट इन सम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कचहरी में नहीं हो कि हर चीज का दलील दिया जाए. ओके, दिस इज अ टैरो गाइडेंस. टैरो गाइडेंस इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन. तो वैसे तो मैं आपको हर चीज क्यों, कैसे, बट, व्हाट, इफ हर चीज को क्लियर करके देती ही हूं, लेकिन इतना भी ज्यादा मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी कि हर चीज को आपको एक्सप्लेन करूं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ. अब इंट्यूटिवली फील हुआ तो हुआ, उसका अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसका क्या एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको. Okay, so that is what it is. Something that I pick during the cards, during the session, I pick it. Please don't forget that I am connected to my spirit guides as I am reading the cards. Okay, so don't ask so many questions. As it is, I already keep things very transparent and clear. तो yes, तो हम बात कर रहे थे फहमान की. तो हो सकता है कि फहमान, while this girl is not revealing her cards, फहमान उसकी फीलिंग्स तो फील कर ही सकता है ना, कोई भी एक बंदा फील कर सकता है. एंड फहमान की जो रीडिंग आई थी इस वीक की, वो क्या थी कि उसके ऊपर कुछ चीज थोपा जा रहा है एंड ही शुड लर्न टू से नो टू इट, है ना. तो हो सकता है कि उसको चैनल के कारण या फिर पॉपुलर, हाउ दीज चैनल्स वर्क, दे बेसिकली नीड eyeballs, they need things to be popular. Even अगर controversy create करता है, it is good for the show because it will keep the show running and relevant. So even if this girl is showing affinity and emotions to the guy and
somehow he is putting up with it. और यही तो उसका इस वीक का गाइडेंस भी है ना, 3 of cups in reverse. He is not liking with the people. उसको अच्छा नहीं लग रहा है. मे बी उसकी कुछ मजबूरी है, लोगों ने लाद दिया है कि ओके थोड़ा सा केमिस्ट्री दिखाओ, लोगों को पसंद आएगा, या फिर लोग गुस्सा होंगे, वट एवर इट इज, एंड ही नीड्स टू से नो टू इट. सो वट एवर इंटीमेसी दिस गर्ल इज शोइंग विथ हिम, ही इज डेफिनेटली नॉट हैप्पी विद इट, क्योंकि 3 of cups in reverse यही बता रहा है कि ही इज नॉट हैप्पी डूइंग वट ही इज डूइंग. एंड दूसरी चीज क्या थी कि ही नीड्स टू से सो. तो द क्वेश्चन इज दैट व्हाई इज ही पुटिंग अप विद दिस. मे बी दैट देर इज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द चैनल, क्योंकि वहां पे तो लिखा ही गया था कि सब लोग उस पे चीजें ला दी जाएंगी. तो वो उसका आंसर है. ठीक है, नाउ आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो. दूसरे वीडियो में मैं देखूंगी कि व्हाट एज यू वांट मी टू सी व्हाट आर देयर थॉट्स फॉर ईच अदर. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अदिति जो लड़की है उसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, उसका भी थॉट्स फॉर फहमान एंड फहमान का थॉट्स फॉर हर चेक कर दूंगी. बट आई विल नॉट टेक एनीबडीज नेम देयर. सो विद ऑल दैट्स सेड एंड डन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.